what is the rule here? Again, we write differential with respect to x. What is the rule here? dy by dx is equal to name it is the first function, it is the second function. What is the rule tells us here? First function as it is derivative of second plus second function as it is and then derivative of first one. That is the rule here. First function as it is derivative of second, v the second function, then plus v second function as it is then derivative of first du by dx. That is the rule here. Now it is the final result. If y is equal to u by v is there, if y is equal to u by v is there, then what is the differentiation of that term? dy by dx. Always remember here, while dividing two functions, denominator is always a first function. You have to take denominator as always a first function. So it is first function, it is second function. Okay. So denominator first function means v as it is. Always denominator first function v as it is. Derivative of second means du by dx. Second का derivative बीच में minus, division में क्या आएगा minus और multiplication में क्या आएगा plus. Minus the second function u as it is पहले का और divided by क्या denominator का square means what here v square is there provided v is not equal to 0 is there. So these are the rules that we have seen in yesterday's class and previous classes. So up till now we are at the position it is the final lecture of differentiation basic. Then from tomorrow we started the 12th portion. So before we do that one, we have to solve some examples on the basis of multiplication, of division, and addition and subtraction is there. So before we do that one, each and every student must know and must remember the formulas of differentiation. Once you know the formula, then you can solve easily the questions and problems of the differentiation. So before going to problem part, once again I will take randomly the derivative. Yes, that inverse ddx of a raised to x exponential function का derivative क्या होगा a raised to x into log u. याद होना चाहिए सबको ddx of e raised to e raised to x. चलो ddx of root x का derivative कितना 1 upon 2 root x. चलो ddx of log x का derivative कितना 1 upon x is there. और इसमें फंक्शन देखा अपन ने ऑफलाइन में देखा ddx of 1 by x ये बार-बार आएगा 1 by x का डेरिवेटिव याद रखो -1 upon x स्क्वायर इज देयर. इसका अपन एक्चुअली निकाल सकते हैं अगर से कोई भूल गया होगा 1 by x का डेरिवेटिव कितना तो क्या करेंगे इसको अपन x का पावर को ऊपर लेके चले जाओ -1 हो गया 1 by x x को ऊपर लेके चले कितना होगा x का पावर -1 इट बिकम्स पावर फंक्शन डेरिवेटिव पावर को नीचे मतलब -1 को नीचे पावर में से कम -1 में से कम मतलब -1 कितना -2 ये कितना होगा तुम्हारा -1 अपॉन x का पावर -2 है नीचे वाला कितना -1 अपॉन x स्क्वायर है. ऐसा लोग निकाल सकते हैं 1 by x का डेरिवेटिव अगर भूल गए तो वी कैन डिराइव द डेरिवेटिव ऑफ 1 by x here. So finally डेरिवेटिव ऑफ 1 by x is nothing but -1 upon x square is there. It is exponential, it is again exponential, it is a root function, square root function, it is a log function, it is a 1 upon any function. 1 upon any function का डेरिवेटिव ऐसे लेंगे अपन. चलो उसके बाद अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव मालूम है अब उसमें टाइम पास नहीं करेंगे अपन है ना. यू नो वेरी वेल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x लिख लेंगे एक बार लास्ट बार इसका अपन प्रॉब्लम को करते हैं. ddx of sin x का डेरिवेटिव cos x then ddx of cos x का derivative minus sin x is there. ddx of tan x का derivative कितना sec square x is there. Then ddx of cot x का derivative कितना minus cosec square x is there. Then afterward ddx of sec x का derivative कितना sec x into tan x. And lastly we got the derivative ddx of cosec x का derivative कितना minus cosec x into cot x is there. So these are the derivatives that you have to remember here. Trigonometric function derivative, exponential, square root function, log function, and then 1 upon any functions. These are the derivatives of some standard functions are there. और एक दो रह गए होंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रह गया फिर यहाँ कंप्लीट करेंगे यहाँ पर ddx of power function. Power function derivative
ये पावर फंक्शन डेरिवेटिव क्या, पावर को नीचे, पावर मींस n को नीचे, पावर में से कम, n माइनस 1 ओके। उसी तरीके से रहेगा कांस्टेंट डेरिवेटिव, the rate of constant is equal to 0 is there. So यहाँ तक सबका concept clear है. If once you know that, then we proceed to the further part of that one. यहाँ पे अगर सबको मालूम है, तो अपन इसके आगे के पोर्शन देखेंगे, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. So clear now, what are those examples here? Examples, we start the example part of that one. So see here now, listen carefully. डेरिवेटिव को फॉर्मूला पार्ट याद है तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन इन दैट वन इज द क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. ये सबका बेस है. जिस किसी को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, उसको 12 का स्टार्ट हो गया ऐसा समझो. यहां से आप ये पूरा 12 का डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. उसमें पहला फंक्शन है y is equal to function is something like to be x का पावर 4/3 plus e raised to x minus sin x is there. ये फंक्शन इससे डिफरेंशिएशन निकालने का है. हाउ टू डिफरेंशिएट द फंक्शन, वेरी सिंपल. यहां से स्टार्ट करेंगे अपन इसको. दिस इज आवर फंक्शन. यस, एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम? वी हैव y is equal to x raised to 4/3 e raised to x minus sin x is there. This is the function, and that the function we have to differentiate here. How to differentiate them? सर्वात पहले इधर differentiate शॉर्ट में लिखेंगे अपन, ये differentiate with respect to x. ये तो पूरा फंक्शन ही x में है, ये साइड में y है और इधर पूरा x है. तो अपन कैसे differentiate करेंगे? With respect to x से. तो इसका डेरिवेटिव with respect to क्या रहेगा? dy dx of y. इसका मतलब क्या, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू ये पूरे फंक्शंस का डेरिवेटिव इसका पावर 4/3 फिर e raised to x एंड देन माइनस sin x. तो सबके डेरिवेटिव बांट के जो सबसे पहले d dx of x का पावर 4/3 पहले इसका डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव किसका लेंगे अपन, e raised to x का डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे डेरिवेटिव ऑफ sin x का लेंगे. वन बाय वन अपन डेरिवेटिव लेंगे. तो अब सबसे पहले इसमें अगर से ये फंक्शन देखेंगे ddx of x raised to 4/3, तो इसमें ये समझ में आना चाहिए x raised to 4/3 means what? x raised to 4/3 means what? It is a म्हणजे what म्हणजे whether it is an exponential function or it is a power function. ठीक वाला पाहिजे. तो यहाँ पे बेस में क्या है, फंक्शन है, पावर में क्या है, कांस्टेंट है. तो ये पावर फंक्शन है. बेस में फंक्शन मतलब x y z, these are said to be the functions in mathematics, and 4/3 as nothing but is a constant. ये कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन. तो बोलो पावर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? एकदम सिंपल, पूरे पावर को नीचे, 4/3 को नीचे और 4/3 में से एक का इट इज द डेरिवेटिव है ना. x raised to n डेरिवेटिव क्या, n into x का पावर n minus 1. उसी प्रकार से n मतलब पूरा पावर 4/3 नीचे आ गया और 4/3 में से एक का. उसके बाद प्लस डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, e raised to x डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e raised to x डेरिवेटिव e raised to x. e raised एक्चुअली कितना रहता, एक्चुअली आता e raised to x log e, बट log e 1 इसके खाली e raised to x. और sin x डेरिवेटिव कितना, it is nothing but sin डेरिवेटिव of sin x is equal of x is there. So finally we got the condition 4/3 4 minus 3 4 में से 3 गया 1/3 plus e raised to x minus cos x is there. It is your answer. Very simple. तो ऐसे है. So number of functions are there. Now next question is something like to here. y is equal to 7 raised to x plus x raised to 7 minus 2/3 x root x, then minus log x and then plus 7 raised to 7 is there. This is the differential. This is a function we have to differentiate this one. Okay. So how to differentiate that one? Same method से जाएंगे अपन इसमें.
हाउ डिफरेंशिएट? So very simple here. First we write let y is equal to Grilla function 7 raised to x, x raised to 7 minus 2 by 3 x root x x root x, then here log x plus 7 raised to 7 is there. I think अगर से नजर नहीं आ रहा होगा तो 1 मिनट सबको समझ आ गया होगा, सबका डिफरेंशिएशन देंगे अपन 1 by 1. तो इसमें फंक्शन आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए. So very simple problem is there. So how to differentiate them? Here now. So first we write here differentiate with respect to x. So it is nothing but d dx of y, y का डेरिवेटिव. अब डायरेक्ट लेंगे इस तरह को. अब इसको और x स्टेप कम करते हैं ऐसे. x को तुम डायरेक्ट लेते चलेगा या फिर तुमको फिर पूरा x लिखना पड़ेगा पहले. या नेक्स्ट स्टेप लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ 7 raised to x, x raised to 7 minus 2 by 3. फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं हम. यस, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे अपन. x root x मतलब कितना? x root x मतलब कितना देखो. x root x is nothing but x का पावर 1 और x का पावर 1 by. ओके, दोनों का बेस सेम. पावर का एडिशन 1 plus 1 by 2 it is nothing but 3 by 2 is there. So can we write x root x in place of x root x, x raised to 3 by 2? क्या हम x into root x से जीरो पे x का पावर 3 by 2 लिख सकते हैं? Yes. इसको सिंपलीफाई करने के बाद ये x का पावर 1 नहीं दिख रहा होगा तो देखो यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिखता है. यहाँ पे x root x मतलब x का पावर 1 और x का पावर 1 by 2. ये दोनों का बेस सेम है तो पावर के एडिशन होगा 1 plus 1 by 2. ये कितना मिलेगा? 3 by 2. तो इस कारण से ये जो x root x यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिखता है x का पावर 3 by 2. ओके, सिंप्लीफिकेशन के बाद then minus log x and then plus 7 raised to 7 remain as it is now. ओके, तो मॉडल डन है. अब तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा यहाँ पे. सबसे पहले लेंगे अपन 7 raised to x का डेरिवेटिव. सबको मालूम है 7 raised to x सबसे पहले बोलो ये कौन सा फंक्शन है? ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. बेस में कांस्टेंट, पावर में फंक्शन. वो कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल. 7 raised to x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. बोलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव बोलो, है ना? ठीक है, एक स्टेप में आप कर लेते हैं इसके द्वारा. एक स्टेप और कर लेते हैं हम. ddx ऑफ स्टार्टिंग है ना अभी. पहले एक बार तुम्हारे को स्टार्टिंग में बता दी कैसा है तो बाद में फिर अपन डायरेक्टली कर सकते हैं. चलो दो तीन क्वेश्चन जरा सिस्टमैटिक करेंगे. पहले फंक्शन का ये रूल है ना. एक्चुअली रूल क्या होता? नंबर ऑफ फंक्शन के बीच में प्लस माइनस माइनस प्लस है तो रूल क्या होता? सबका डिफरेंशिएशन बांट के दे दो. तो पहले इसका डिफरेंशिएशन बांट कीजिए, फिर इसका बांट के सबका बांटिए. हम इसमें बांट के इसी टर्म में देखिए ddx ऑफ -2 by 3 x का पावर 3 by 2. तो 2 by 3 जो है कांस्टेंट है, ये याद रखो. 2 by 3 डेरिवेटिव का है तो डेरिवेटिव सिर्फ किसका लेंगे अपन? x का पावर 3 by 2 का डेरिवेटिव. और ना ये अपन कोरोलरी का देखने वाली थी. कोरोलरी क्या थी कि ddx ऑफ k into x है. k into v है जैसा x ही डेल्टा. उसमें k अगर से कांस्टेंट है तो k क्या आएगा? डेरिवेटिव के बाहर. डेरिवेटिव में सिर्फ क्या रहेगा? ddx ऑफ x. तो ये इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे तीसरे टर्म में -2 by 3 ये कांस्टेंट है, इसके डेरिवेटिव के बाहर आएगा. डेरिवेटिव में सिर्फ कितना रहेगा? x का पावर 3 by 2 माइनस से ddx of log x and then finally the last step ddx of 7 raised to 7 is there. So let us solve. अब उसमें सिर्फ फार्मूले का खेले. बोल उसका फार्मूला क्या है? 7 raised to x की एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज बेस का log 7. ओके, है ना? इसका वो ये पावर फंक्शन है. बेस में फंक्शन पावर को नीचे इनटू x और पावर में से कम 7 में से 1 है कितना आ गया? 6 माइनस 2 by 3. ये अगेन पावर फंक्शन है. x का फंक्शन है 3 by 2 कांस्टेंट है. तो कैसे बताया मैंने?
हाउ टू टेक द डिफरेंशिएशन, देखो इसका डिफरेंस, ये जो 2/3 कांस्टेंट है दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन बता, पावर को नीचे 3/2 को पूरा नीचे और 3/2 में से एक कम, 3/2 में से एक कम डायरेक्ट करेंगे, 3/2 में से एक कम कर देंगे, कितना आएगा, 3 में से 2 गया 1/2 कर दो डायरेक्ट, 3 में से 2 गया 1/2 से, राइट है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x, log x डेरिवेटिव कितना 1/x, और यहाँ पे देखो ये जो है ये क्या है पूरा, ये कैसे कंफ्यूज करा उसने, देखो 7 है, 7 भी कांस्टेंट, 7 भी कांस्टेंट, कांस्टेंट के पावर में कांस्टेंट क्या मिलेगा, कांस्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, प्योरली कांस्टेंट का डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 0 है ना, मतलब ये अभी तो बहुत बड़ा नंबर है, समझो ऐसा है, समझो फॉर एग्जांपल 2/2, तो तुम इसको सॉल्व भी करेंगे तो ddx ऑफ 2/4 कितना आएगा 4, मतलब कांस्टेंट, पहले बताया मैंने, कांस्टेंट मतलब ऐसा नंबर जिसके आगे x, जिसके पीछे x, न किसके, जिसके ऊपर x नीचे x, कहीं भी x नहीं, सिर्फ नंबर रहेगा तो इट इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट हियर। यहाँ पे चार के ना आगे x है, ना पीछे x है, ना ऊपर x है, ना नीचे x है, तो ये जो चार है ये प्योरली कांस्टेंट है, तो प्योरली कांस्टेंट का डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू 0। मगर ये कभी अगर से x के साथ आता है, जैसे कि 4x हो गया, तो सारे दो कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, ऐसा नहीं, अब ये 4x के साथ आना है तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर डेरिवेटिव में क्या रहेगा, ddx ऑफ x इज देयर, तो ये 4 और x का डेरिवेटिव कितना 1। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बताने का कि ये जो है ये कांसेप्ट बच्चों के दिमाग में ऐसा रहता, डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1 कैसा, तो क्या करते, dx cancel, it is equal to 1, so it is the wrong one, it is not a method of taking that one। ये याद रखो कि डेरिवेटिव ऑफ x जो है 1 कैसा आया, पावर फंक्शन से आया, ये होगा x का पावर 1, ठीक है, तो इसको 1 को नीचे, 1 में से एक कम मतलब एक में से और एक कम, तो कितना मिला ये 1, 1 में से 1 गया 0, और सबको मालूम है x रेज़ टू 0 मतलब कितना 1, तो डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ e by dx of x that is nothing but as हमने x का डेरिवेटिव हमेशा कितना रहेगा with respect to x 1, उसी तरीके से dy by dy with respect to y करेंगे तो भी कितना रहेगा 1, तो ये ऐसा है बहुत सिंपल। तो ये क्वेश्चन हो गया, हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इस क्वेश्चन समथिंग लाइक टू बी सब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये रूल्स पे जितने भी क्वेश्चन थे आज तो रूल्स पे लूंगा, तीनों भी रूल्स पे, तो आप यूनिट पे भी चलेंगे क्वेश्चन में, फंक्शन ऐसे आ गया तो बस ठीक है, y is equal to x cube into log x, so here x cube is a function, log x is a function, and here the two functions are in multiplication, so how to differentiate them, very simple, so first we write here we have y is equal to x cube into log x is there, so call this function as a first function, this function as a second function, अपने दिल पे इसको भी पहला बोल सकते हैं, इसको दूसरा बोल सकते हैं, अपनी तरह जो चॉइस, तो कोई बात नहीं। Now differentiate with respect to x, how to differentiate, कोई y का डेरिवेटिव बोलो ddx of y, मतलब y का डेरिवेटिव with respect to x। Now tell me how many functions, there are two functions are there, and what is the rule here, if there are two functions are in multiplication, then rules tells us here how to differentiate them, first function as it is, say derivative of second plus second function as it is and derivative of first का derivative ddx of x cube का derivative आया समझ में, first function as it is, derivative of second
plus second function as it is derivative of first. Now it is simply x cube. The derivative of log x is nothing but 1 by x plus log x into derivative of x cube. X cube का derivative x cube मतलब ये पावर फंक्शन derivative कैसा? पावर को नीचे पावर में से एक कम. Okay. So this x and this is cancelled. It is nothing but x square is there. So after simplification, x square, you know, 1x and 1x cancel. You got here x square is there. And this is x square and this is x square. Again we have taken x square common here. Simplification के टाइम पे x square अगर से common निकाल दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ बचा 1 plus यहाँ पे कितना बचा? 3 into log x. This 3 log x. So it is the answer of that question. We got that. We proceed to the next example. Okay, we proceed to the next example. Next example is something like here. There is a function y is equal to x raised to 3 by 2. X raised to 3 by 2. चलिए x square plus 2 का square. X square plus 2 का square into x square plus 2 का square into sin x. So again here it is a two function here. Again it is a two function. First one is the numbering दे, इसको numbering करो. ये पहला function और ये दूसरा function. Again u into v. Apply the rule of u into v here. u into v जब अगर अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो? First function as it is, derivative of second plus दूसरा function sin x as it is और derivative of first. 2 into x square plus 2 है क्या? Yes. तो थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा चलो. Into कितना? ddx of x square plus 2 का square is there. तो यहाँ पे बेसिक होने की वजह से ये एग्जांपल में थोड़ा देखो हमको थोड़ा चीजें मालूम होना जरूरी है कि यहाँ पे इसका डिफरेंशियल कैसे नहीं लिखोगे, है ना? एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है ठीक कोई बात नहीं, ऐसे नहीं है डिफरेंशियल. So how to differentiate? Very simple one. X square plus 2 square as it is. Derivative of sin x, it is nothing but derivative of sin x is nothing but it is the cos x is there plus sin x into. Now before going to taking derivative of that one, first you take the expansion of that one and then you have to differentiate there. Means what here? पहले इसका expansion तो समझो, ये होगा dx of expansion क्या है इसका बोलो? x square plus 2 ब्रैकेट का स्क्वायर है. एक्सपांशन क्या है इसका? a square मतलब x raised to 4 plus 2ab मतलब कितना 4x square plus b का स्क्वायर मतलब कितना 4 is there. एड एक्सपांशन समझ में आया इसका? a plus b का होल स्क्वायर. a square means x raised to 4, 2ab means 2 into 2 4x square and then b square means 4. अब इसका सर हेलो सर सर उसको डायरेक्ट अपन डायरेक्ट होता मगर डायरेक्ट तुमको मालूम नहीं ना अभी. डायरेक्ट जो है पावर फंक्शन की वजह मतलब दो उसके सामने ले लेंगे, फिर बाद में उसके डेरिवेटिव ऑफ सम लगाएंगे. क्या बोले? मतलब पहले दो उसके नीचे ले लेंगे 2 into x square plus 2.
अभी तो बोल रहा तुमको डायरेक्ट मालूम नहीं है ना, इसमें एक्चुअल ये जो है ना, ये तुम्हारे को अभी अगला जो बीट है उसके हिसाब से इजीली सॉल्व होता। इसे तो मैं दो बार देखा क्वेश्चन। ये जो है तुम्हारा, ये अगले इसमें तुमको जो है ना, ये हो गया ये डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं अपन चेन रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। चेन रूल, और उसको बोलते हैं अपन कंपोजिट फंक्शन, जो कि अगला बीट है, इसके बाद नेक्स्ट बीट वही है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? पावर को नीचे, जैसे तुम बता रहे हो वैसा, पावर को नीचे, पावर में से एक कम, मगर यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से यहाँ पे बेस का भी डेरिवेटिव आता, डी डी एक्स ऑफ बेस में जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसा आता। इसकी वजह से अभी तुमको मालूम नहीं है, इसकी वजह से मैंने वैसा नहीं लिया यहाँ पे। ऐसे तुम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, मगर इसको तुमको कैसे लेना पड़ेगा? चेन रूल से लेना पड़ेगा। चेन रूल इज आल्सो कॉल्ड एज अ कंपोजिट फंक्शन, जो कि अपना अगला बीट है। इसकी वजह से मैंने इसको डायरेक्ट ले लिया। डायरेक्ट ले सकते हैं, मगर डायरेक्ट लेंगे तो कैसे लेना पड़ेगा? पावर को नीचे, पावर में से कम, और बेस का भी डेरिवेटिव, जो कि चेन रूल में अच्छे से बताता है कि कैसे लेंगे। बोले हर फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन चेन रूल से देखेंगे। फिलहाल ये तुमको मालूम नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं लिया, एक्सपांशन के हिसाब से बताया। ठीक है, ये भी ले सकते हैं, इट इज करेक्ट वन, बट इट इज बाय अकॉर्डिंग टू चेन रूल से, और जो कि तुमको मालूम नहीं है, इसलिए अभी उसको रहने दो। नेक्स्ट बिट वही है अपना। तो यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर cos x प्लस sin x इंटू x रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव ये डिवाइड 4x क्यूब है ना, 4 को नीचे, और फंक्शन 4 को नीचे, 4 में से एक कम, प्लस अगेन अब यहाँ पे देखो ये 4 कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव तुम फास्ट बोल सकते हो। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर? x स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो ddx ऑफ x स्क्वायर है ना, पावर फंक्शन, पावर को नीचे, पावर में से कम मतलब 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है कांस्टेंट 4, तो टोटल कितना होगा 8x, और ये प्योरली कांस्टेंट है। 4 को ना आगे x है, ना पीछे x है, ना ऊपर है, ना x है, तो प्योरली कांस्टेंट डेरिवेटिव कितना 0। तो द आंसर ऑफ दैट वन, आई होप यू गॉट दैट वन। तो अपन डायरेक्ट इसके लिए लेंगे कि वो डायरेक्ट अपन कैसे ले सकते हैं, बाय यूजिंग चेन रूल, बट वी डोंट नो द चेन रूल हियर। So because of that, you take the expansion a plus b whole square. In that one, it is a power function. Power function मतलब क्या? Power को नीचे, power में से एक कम, plus ये 4 constant था, x square का डेरिवेटिव निकाल के बताया यहाँ पे, x square का डेरिवेटिव कितना 2x, तो ये 2x और यहाँ पे constant 4, फिर 4 दो में कितना हो गया 8x, और ये purely constant है, purely constant डेरिवेटिव कितना आएगा 0। I hope you got that one. अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x raised to 3/2 e raised to x log x, x raised to 3/2 e raised to x log x। एक क्वेश्चन ये भी बता देता हूँ, ऐसा इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, मगर फिर भी बता देता हूँ कई बार ऐसा आया तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। मगर इसका एडवांटेज ज्यादा नहीं है इसका, मतलब जब भी दो से ज्यादा फंक्शंस आएंगे ना, तो उसके लिए भी डिफरेंशिएशन का अलग से रूल है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा, ये हो जाएगा log y, और यहाँ पे log अप्लाई करने से ये क्या होगा log a into b into c। तो डायरेक्ट log a into b into c का रूल क्या होगा log a plus log b plus log c, वैसे ले सकते हैं। मगर फिर भी फॉर योर कन्वीनियंस एक एग्जांपल ले लेंगे अपन कि अगर से तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आएंगे 1 2 3, तीन फंक्शन अगर से मल्टीप्लिकेशन में, तो हाउ टू टेक द डिफरेंशिएशन, सेम वे से जाएंगे। देखो हाउ टू टेक द डिफरेंशिएशन हियर। So here it is x raised to 3/2 e raised to x and log x is there. How many functions are there? 3 functions are there. And now how to take the derivative? Very simple one. ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं आता तीन का, तीन से ज्यादा, दो से ज्यादा कैसे है अपन क्या यूज करते हैं वहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बट ओके कन्वीनियंट है, तीन अभी कर सकते हैं अपन, मगर इससे ज्यादा अगर से आएंगे समझो तीन से ज्यादा, तब अपन क्या यूज करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो देखो अभी तीन फंक्शन के लिए कैसा, ये तुम्हारा पहला, दूसरा, अभी तीसरा फंक्शन। तो उससे में सिर्फ काम बदलेगा, देखो सिर्फ यहाँ जाएगा कि यहाँ पे जो है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज थोड़ा बढ़ जाएगा का, और डेरिवेटिव किसका लेंगे अपन बाकी दो का, बाकी दो फंक्शन के डेरिवेटिव हो गया, प्लस अब क्या
इसको बाहर रखे, ये दोनों के लिए आपका e रेज़ टू x को बाहर रखो और डेरिवेटिव करेंगे अपन ये दोनों का x रेज़ टू 3/2 इनटू log। अब समझ आ गया? आप इसको बाहर रखेंगे, log x को बाहर रखेंगे और ये दोनों का डेरिवेटिव प्लस log x बाहर और डेरिवेटिव इसका x रेज़ टू 3/2 इनटू e रेज़ टू। तो ये मेथड है कि अगर से एक से दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में तीन फंक्शन के लिए सिर्फ है ना, चार के लिए आएगा तो अपन क्या यूज करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशियल। अब ये इसमें दो फंक्शन है e रेज़ टू x log x, तो इसमें क्या होगा u into v। इसमें भी दो फंक्शन है तो कौन सा u into v, इसमें भी क्या है दो फंक्शन है तो कौन सा यूज होगा u into v। बस उसको सॉल्व करने का है और उसको रन करेगा करके बताओगे एकदम सिंपल आंसर तुमको आ जाएगा। और इसको जगह कम है तो हम इसको थोड़ा ऊपर करेंगे है ना। Clear now how to solve that one? Very simple. ये होगा पहला फंक्शन x रेज़ टू 3/2 एज इट इज। ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे अपन। ये दो फंक्शन है, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन। बोलो रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डायरेक्ट लिख रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन e रेज़ टू x एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा मतलब फंक्शन क्या है log x, log x डेरिवेटिव बोलो 1/x, डायरेक्ट ले रहा हूं प्लस इसमें दूसरा फंक्शन क्या है log x इनटू पहला फंक्शन क्या है e रेज़ टू x, e रेज़ टू x डेरिवेटिव कितना आ गया e रेज़ टू x, एकदम डायरेक्ट टाइम पास नहीं है ना। फर्स्ट फंक्शन e रेज़ टू x log x डेरिवेटिव, दूसरे का डेरिवेटिव मतलब 1/x, दूसरा फंक्शन log x एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव e रेज़ टू x। ठीक है, चलो अगली ब्रैकेट में लगाओ। अगली ब्रैकेट में ये e रेज़ टू x, ठीक है। अब करो इसको u इनटू v। फर्स्ट फंक्शन है x का पावर 3/2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का डेरिवेटिव 1/x। ओके, नाउ प्लस सेकंड फंक्शन log x एज इट इज इनटू, अब x का पावर 3/2 कौन सा फंक्शन है बोलो? ये है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन डेरिवेटिव बोलो, पावर को नीचे 3/2 को पूरा नीचे, 3/2 में से एक कम डायरेक्ट करूं क्या? 3 में से 2 गया 1/2 इज देयर, राइट। पावर को नीचे 3/2 को नीचे, पावर में से एक का मतलब 3/2 में से एक गया तो 1/2, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट। प्लस तीसरे का log x एज इट इज और इसमें u into v। अभी क्या था u into v में पहला फंक्शन x रेज़ टू 3/2 एज इट इज, दूसरा फंक्शन e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x प्लस दूसरा फंक्शन e रेज़ टू x एज इट इज, और पहले का डेरिवेटिव अभी दिया अपन ने x का पावर 3/2 का डेरिवेटिव ऊपर ही दिया अपन ने, कैसे लिए? पावर को नीचे, पावर में से एक कम, एक का मतलब कितना? 3/2 में से एक का मतलब 1/2। अगर किसी का इंटरेस्ट है तो इसको पूरे इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसमें से e रेज़ टू x कॉमन निकालो, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फर्दर तुम इसको ऊपर लेके जा सकते हो, 1/x को ऊपर लेके जाओ, मतलब ये क्या होगा देखो, x का पावर 3/2, x का पावर -1, दोनों का बेस सेम, ठीक है, दोनों का बेस सेम, मतलब यहाँ पे बता देखो। चलो एक स्टेप करके बता देंगे कैलकुलेट कर देते हैं। चलो तो इसमें अगर किसी को सिंपलीफिकेशन करने का है तो सिंपलीफिकेशन कर सकता ऐसा, x का पावर 3/2, यहाँ से e रेज़ टू x और यहाँ से e रेज़ टू x कॉमन, तो ये बन गया 1/x प्लस log x, ओके, प्लस e रेज़ टू x। आपको ये बता रहा था हमें ये 1/x यहाँ पे साइन हो रहा था, ये टर्म्स को 1/x को ऊपर ले गया तो कितना x का पावर -1, दोनों का बेस सेम, तो कैसा होगा 3/2 -1, तो 3 में से 2 गया कितना आ गया 1/2। तो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद सिर्फ टर्म कितनी आई x का पावर 1/2, ये दोनों को सॉल्व करने के बाद, और यहाँ पे भी x का पावर 1/2 है, तो हम यहाँ से x का पावर 1/2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 3/2 इनटू log x। ओके, अगली टर्म में देखो क्या कॉमन निकलता, e रेज़ टू x और x का पावर 1/2 भी कॉमन निकलता है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कॉमन देयर, है ना। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा log x e का पावर x और x रेज़ टू 1/2,
चल जाने दो, 5 को 10 करने का रहेगा। यहाँ से निकलता मगर इफ यू आर इंटरेस्टेड तो तुम यहाँ से x का पावर 1/2 कॉमन निकाल सकते हो प्लस 3/2 into x का पावर 1/2। So it is the answer of that one, very simple one। तो तीन फंक्शन में अगर चाहे तो कोई बात डरने की बात नहीं, इसको अपन वैसे डिफरेंशिएट करेंगे जैसे अपन दो के लिए करते हैं, ठीक है। So now we proceed to the next part of that one, or is the homework, it is in terms of division is there। तो डिवीजन के लिए तुम्हारे लिए होमवर्क है 11 के इसमें से एक्सरसाइज 9.2 अगर से पूरी सॉल्व कर ली तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन का बेसिक पक्का हो जाएगा। अपन कुछ एग्जांपल देंगे इसमें, अगर से तुम्हारे को प्रैक्टिस के लिए होना होगा तो एक्सरसाइज 9.2 के 11 में से क्वेश्चन करो पूरे सॉल्व, जो क्वेश्चन आया है वो अपन उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन से ही पूरे इसमें दो ही एक्सरसाइज है, तब अपना 11 का